A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your SST classes. Today, we'll start a new chapter in our geography, that is chapter number 5, Major Domains of the Earth. So today we'll study about the main domains of the Earth. Major means main. Main domains means main parts of the Earth. जो हमारे Earth के 4 main parts हैं, 4 main components हैं. Today we will read about them. Okay. So in our previous chapters we have studied that the Earth is the only planet in which we have life. मतलब Earth एक ऐसा planet है जिसपे life possible है, जिसपे लोग रह सकते हैं. And why it is possible we lived on Earth. हम Earth पे क्यों रह सकते हैं? Because it has all the 3 components or you can say elements जो कि life possible करते हैं. Means it is compulsory to have land, air and water present on any planet so that human can survive. Means for sustaining the life we require land, air and water, and Earth is the only planet which has land, water and air. Earth ही एक ऐसा planet है जिसमें land, air और water तीनों चीज हैं, इसलिए Earth पे life possible है. So the surface of the Earth is a complex zone. जो Earth का surface है वो complex zone है. Complex means मिला जुला, मीन्स उसमें लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है. ठीक है, सारी चीजें, तीनों चीजें. तो हम आज अर्थ के इन्हीं कॉम्प्लेक्स जोन्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम डोमेन्स कहते हैं. ओके, सो द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर मीट, इंटरैक्ट और ओवरलैप. कुछ चीजें होती हैं जैसे लैंड और वाटर, लैंड सरफेस है हमारा, मीट करते हैं. कुछ होते हैं ओवरलैप करते हैं. ओवरलैप करना मीन्स एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैपिंग होना, मीन्स मिक्स होना. एंड द थर्ड वन इज इंटरैक्ट, एक दूसरे से मिलना, मीन्स इंटरैक्ट करना, सामने सामने होना. ओके, सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, द 4 मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर, जो अर्थ के हमारे 4 मेन डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. सो द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. व्हाट इज लिथोस्फीयर? ये कौन सा डोमेन है? दिस वन इज द first domain, which means the solid portion of the earth on the surface which we live. जिस surface पे हम रहते हैं, जो हमारा solid portion पे हम रहते हैं, we don't used to live on water or air ना. हम लोग तो जो earth का solid portion है उस portion में रहते हैं. So we call that portion lithosphere. जो earth का solid portion होता है that is known as lithosphere. The gaseous layers सराउंड दी अर्थ. जो हमारा अर्थ है उसमें आप चारों तरफ देखेंगे अर्थ इज सराउंडेड बाय द गैसियस लेयर्स, मींस गैस की लेयर्स से सराउंडेड है, घिरी हुई है. सो द गैसियस लेयर्स सराउंडेड बाय द अर्थ लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड मेनी अदर गैसेस लाइक दैट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर नोन एज एटमॉस्फेयर. ये जो गैसेस की लेयर होती हैं दीज आर नोन एज एटमॉस्फेयर. थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर. Water covers a very big surface. जो हमारे अर्थ का मोस्ट ऑफ द सर्फेस है दैट इज कवर्ड बाय वाटर. अर्थ का जो ज्यादा से ज्यादा सर्फेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. एंड दिस एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. तो जितना भी एरिया वाटर से कवर्ड है और जितने भी सर्फेस में वाटर है दैट एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. एंड व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड all the 3 elements of life like land, water and air. All the forms of life are present in the biosphere. Biosphere वो surface है जहाँ पे land, air and water तीनों चीज ही present होती है. So this is the narrow portion. Narrow portion means थोड़ा ही portion ऐसा है जहाँ पे ये तीनों चीज available है. Means all forms of life are possible are known as biosphere. तो ये बहुत थोड़ी ही surface है जहाँ पे biosphere available है. And most of our earth surface is covered by water that is known as hydrosphere, and the gaseous layers present here on the surface of the earth are known as atmosphere, and the lithosphere is the solid part in which we used to live. Okay, so first of all we are going to study about the lithosphere. हम अपने earth के surface के बारे में पढ़ेंगे that what is lithosphere and how the solid part of the earth has formed and what are the elements of it. Okay, so the solid portion of the earth is called lithosphere. जो अर्थ का हमारा सॉलिड पोर्शन है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट
और जो लिथोस्फीयर होता है ये किससे बना हुआ है, जो हमारे अर्थ का पार्ट है वो सॉलिड कैसे है, जो सरफेस है वो सॉलिड कैसे बना है, अर्थ क्रस्ट मीन्स जो रॉक्स होती हैं उनसे, ओके, एंड दी थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, और सॉइल की पतली लेयर्स से मिलके बना है जिसमें, और जो सॉइल की लेयर है इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सरफेस को उपजाऊ बनाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, और इसमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। तो द सरफेस इज मेड ऑफ रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट से मिली हैं। रॉक्स मीन्स रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो टूटते 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 काफी टाइम लगता है उनको टूटते, और काफी टाइम के टूटने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और सॉइल की एक थिन लेयर मीन्स पतली लेयर जिसमें कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइव करते हैं। ओके, तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो ऐसे बना हुआ है, मीन्स जो अर्थ का सरफेस है वो सॉइल और रॉक से मिलके बना हुआ है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अब जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके दो मेन डिविजन्स हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, और जो हमारे लार्ज मतलब कि लैंड मासेस तो बहुत लार्ज एरियाज हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, एंड द स्मॉल ह्यूज वाटर बॉडीज और द ह्यूज वाटर बॉडीज। ठीक है, जो हमारे लिथोस्फीयर में भी अब दो पार्ट हो गए, जो मेन डिविजन है, फर्स्ट वन इज जो बड़े बड़े लैंड सरफेस है, ओके, सरफेसेस हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज मीन बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जैसे छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज होती है, तो उन्हें हम सहायक नदियां या नदियां कहते हैं। बट जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है जहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओशन। तो दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज द कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड वर्ड इज द ओशन। ओके, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, और हमारे वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। And further I will tell you about the oceans also, that how many oceans are there and how they are connected. So all the oceans of the world, जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी oceans हैं वो सब एक दूसरे से connected हैं। Okay, the level of sea water remains the same everywhere, और जो सी वाटर का लेवल है, जो हमारे समुद्र के पानी का लेवल है वो हर जगह पे सेम होता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अदर लेवल्स, मतलब जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह पे, आप कहीं कहीं पे भी जाके देखेंगे तो इट विल बी द सेम, इट नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस। ओके, द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। जो हमारे लैंड से और सी का एलिवेशन है वो कितना लिया गया है, जीरो माना गया है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द सीज आर सेम। ओके, so now we will study about the continents and oceans. Okay, now so we will study about the 7 major continents of the earth. हमारे अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स, अभी मैंने बताया कि जो हमारा ह्यूज सरफेस ऑफ लैंड होता है, those are known as continents. So the major there are major 7 continents. हमारे जो अर्थ है उनके 7 major continents होते हैं, and those are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और दीज ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ये जो लैंड सरफेस हैं जिन्हें हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है, ये किससे सेपरेट किए गए हैं, जो ह्यूज वाटर बॉडीज मीन्स जो वाटर बॉडीज है मीन्स पानी है, वो उन्होंने ये लैंड को क्या किया है, डिवाइड किया है, मीन्स सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज single continents, and there are 7 major continents. Okay, I have already told you about the 7 major continents, that are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay, so the first one we are going to study about is the Asia. Asia is the largest continent. Asia जो हमारा वो हमारा सबसे बड़ा continent है, including all the 7 continents. The largest one is the Asia. Asia हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। It covers about 1/3 of the total land. जो हमारे टोटल लैंड है कॉन्टिनेंट की, उसमें से 1/3 of the land is covered by Asia. एशिया ने कवर की है, and the continent lies in the eastern hemisphere. और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, ये कहाँ लाई करता है, हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर आपने पढ़ा था, ऐसे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी होता है। सो द एशिया लाइज इन आवर ईस्टर्न हेमिस्फीयर,
and the Tropic of Cancer passes through this continent. और हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी से पास होके जाती है. ओके, look at the map. The map is given on your book. Look at that map and you will find that the Tropic of Cancer is passing through the continent Asia, which lies on the eastern hemisphere. Okay, the combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंडमास होता है इसे हम क्या कहते हैं? यूरोशिया. मीन्स यूरोप और एशिया दोनों का लैंडमास, मतलब लैंड की जो मास है, वेट है, या हम कह सकते हैं एरिया है, उसे हम कंबाइन कर दें तो इनका नाम क्या दिया गया है? यूरेशिया. यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया. ओके, so now we will study about the Europe, the second main continent of the earth. So Europe is the smaller than much smaller than Asia. यूरोप जो है ये हमारा एशिया से बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, मीन्स छोटा है. The continent lies to the west of Asia, और एशिया के वेस्ट में, मीन्स एशिया lies in the eastern hemisphere and in the west of Asia, एशिया के वेस्ट में हमारा सेकेंड कॉन्टिनेंट है, that is known as यूरोप. यूरोप लाइज इन दी वेस्ट ऑफ एशिया. एशिया के वेस्ट पार्ट में यूरोप लाई करता है. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट से कौन सा लाइन पास करती है? आर्कटिक सर्कल. एशिया से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू यूरोप. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट एंड इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड. और जो हमारा यूरोप है ये थ्री साइड से, मीन्स दीज थ्री साइड्स आर कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली वन साइड इज सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑल द थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर. ठीक, मीन्स कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू कैन लोकेट इट. ठीक, आप वर्ल्ड का मैप देखिए एंड यू विल फाइंड दैट द एशिया फर्स्ट. यू हैव टू फाइंड द एशिया फर्स्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड बिहाइंड द वेस्ट ऑफ एशिया. In the west of Asia, you will label the Europe, because as you will be easily find it as it is surrounded by water bodies from the three sides. Three sides से ये water bodies से surrounded है and one side is only having land surface. Okay. Now the third one is Africa. Africa is the second largest continent. Means Asia के बाद सबसे जो हमारा largest continent है ये हमारा Asia है and Africa is the सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है, अफ्रीका हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू दी अफ्रीका. जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर जाता है ना, वो ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 19-20 का डिफरेंस, नहीं तो ऑलमोस्ट अफ्रीका से पास होता है. मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट मीन्स अफ्रीका के मिडिल से पास होता है. जो कॉन्टिनेंट का मिडिल पोर्शन है वहां से पास होता है. मिडिल से थोड़ा सा, ऑलमोस्ट का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो वो एकदम मिडिल में होता है. विच व्हाट इज पासेस थ्रू अफ्रीका? इक्वेटर. एट 0 डिग्री पे तुम्हारा इक्वेटर होता है. सो एशिया में क्या होता था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता था. यूरोप में हमारा आर्टिक सर्कल एंड इन अफ्रीका जो कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इक्वेटर पासेस थ्रू इट. और कहाँ से पास होता है? इन द मिडिल ऑफ Africa, means almost, or you can also say the middle of Africa. Okay, a large part of Africa lies in the northern hemisphere. जो अफ्रीका है ये कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कुछ पार्ट जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर में करता है, मीन लेकिन अफ्रीका का जो लार्जर पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट मीन ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास. ये सिर्फ एक ऐसा पहला कॉन्टिनेंट है और यू कैन से दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर ऑल द थ्री पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. और ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों पास करते हैं. ओके, द सहारा डेजर्ट जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है. ठीक है, द सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है हमारा, लाइज लोकेटेड इन अफ्रीका. ये भी कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में. ये अफ्रीका में ही पाया जाता है. द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड्स. और जो कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका है ये हर तरफ से घिरा हुआ है. ठीक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर यू कैन से, लाइन रिवर ऑल्सो फ्लोज थ्रू अफ्रीका. जो हमारे वर्ल्ड की सबसे
लंबी, लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी रिवर है, वो भी किससे पास होके निकलती है, अफ्रीका से पास होती है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन दी अफ्रीका ऑल्सो। मीन्स what are the things passes through Africa? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn और इक्वेटर, ये तीनों तो पास करते ही अफ्रीका से। एंड जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, इट ऑल्सो पासेस थ्रू अफ्रीका। एंड सहारा डेजर्ट विच इज द हॉटेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट इज ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका। ओके, एंड अफ्रीका इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ आवर अर्थ। नाउ वी विल मूव अहेड अबाउट नॉर्थ अमेरिका। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड वन इज अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका। और जो नॉर्थ अमेरिका ये किससे लिंक्ड है, लिंक्ड मीन्स जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन दी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मीन्स पाया जाता है। द ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट। और जो ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, इसे ये किससे सराउंडेड है, ओशन से सराउंडेड है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द ओशन विच हैज बीन सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका। मीन्स नॉर्थ अमेरिका जिन ओशन से सराउंडेड है, जिन ओशन के चारों तरफ घेरा हुआ है, उन ओशन का आपको नेम फाइंड आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट साउथ अमेरिका। So till now we have studied about the four continents. First one is Asia, second one is Europe, third one is Africa and fourth one is North America. जो हमारा एशिया है ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट लाइज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, यूरोप इज दी सेकेंड कॉन्टिनेंट एंड इट इज स्मॉलर देन एशिया, मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से काफी छोटा है। एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अफ्रीका इज दी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और एक ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों चीजें पास होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये मोस्टली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द फिफ्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्टली फाउंड लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता था नॉर्थ अमेरिका, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है साउथ अमेरिका। एंड नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद साउथ अमेरिका, मीन्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ अमेरिका लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हमारा एंडीज माउंटेन है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज जो है एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, वो किससे लाई करता है, साउथ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ पड़ता है एंड इट लाइज ऑन दी इन दी साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन्स के बारे में आपने सुना होगा। दीज माउंटेन आर दी हैव लॉन्गेस्ट माउंटेन्स, मीन्स दीज माउंटेन्स हैव द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द वर्ल्ड। एंडीज माउंटेन्स जो है, हाँ, और ये कहाँ से लाई करते हैं, नॉर्थ से साउथ में पूरा लाई करते हैं, मीन्स पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, दी अमेजन रिवर। जो अमेजन रिवर है हमारी वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, दैट इज फाउंड इन दी साउथ अमेरिका। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा वर्ल्ड का सबसे smallest continent है। Asia is the largest and Australia is the smallest. Whenever anybody will ask you about the continents and which is the smallest and the largest continent, you have to tell that Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Lies entirely in the southern hemisphere and Australia also lies in southern hemisphere like साउथ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया भी साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, मीन्स इट ऑल्सो सिचुएटेड इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। एंटायरली मीन्स पूरी तरीके से, इसके कुछ भी पार्ट और किसी हेमिस्फीयर में नहीं है। ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर लाइज इन
southern hemisphere. Okay, it is surrounded on all the sides by the ocean and seas. और जो ऑस्ट्रेलिया है ये चारों तरफ से, ठीक, इट्स ऑल साइड्स आर सराउंडेड बाय सीज एंड ओशन, से पूरा का पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया सराउंड मीन्स घिरा हुआ है. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. और कोई भी अगर आप जो लैंड मास है अगर वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कोई भी लैंड मास है, ठीक, अगर वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वी कॉल देम आइलैंड. उन्हें हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन island continent. Why? Because it is surrounded by water from all the sides. This is the only planet that is known as island continent because it is surrounded by water from all the sides. Other continents जो है वो किसी एक साइड से या दो साइड से या all the three sides are surrounded by water, but completely चारों तरफ से पानी से नहीं घिरे हुए हैं. That's why they all are not known as island continent. But Australia is the only continent which is surrounded by water from all the sides. That's why Australia is known as island continent also. Okay. So now the last one is Antarctica. What is Antarctica? Antarctica is a continent of the world which is the last continent, meaning the seventh continent of the world. Antarctica is completely in southern hemisphere. Antarctica is also found in southern hemisphere, like South America, Australia and Antarctica also found in southern hemisphere. And it's all the parts, means total Antarctica, the entire Antarctica lies in southern hemisphere. is a huge continent. Huge means बड़ा, ये भी काफी बड़ा एक continent है, ठीक है. The south pole lies almost of the center of the continent. और जो हमारा साउथ पोल है, हमारा जैसे अर्थ है तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो जो हमारा साउथ पोल है ये लाइज ऑलमोस्ट मीन्स लगभग इसके सेंटर में पाया जाता है. सो अंटार्कटिका का जो सेंटर पार्ट है वहां पे क्या लाई करता है? हमारा साउथ पोल लाई करता है. एज इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न पोलर रीजन, जो हमारा अंटार्कटिका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे लाई करता है. इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस. इसीलिए ये परमानेंटली, क्योंकि ये पोलर रीजन मीन्स जो ठंडे एरियाज होते हैं, ठंडी जगह होती है, वहां पे लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न पोलर रीजन में. दैट्स व्हाई इस कॉन्टिनेंट पे हमेशा एक थिक लेयर मीन्स मोटी परत, बर्फ की मोटी परत जमी हुई होती है, मीन्स पाई जाती है. अ थिक लेयर ऑफ आइस इज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. ओके, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. और यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव ऑन द सरफेस विच हैज आइस ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली या परमानेंटली ऐसे सरफेस पे नहीं रह सकता है जहाँ पे आइस हो. सो दैट्स व्हाई there is no permanent human settlement in this continent. Many countries have research stations in Antarctica. बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में हैं. इंडिया और हैड ऑल्सो रिसर्च, और हमारा जो इंडिया है इसके भी काफी सारे रिसर्च स्टेशंस हैं. एंड दे आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. और जो हमारे इंडिया के दो रिसर्च स्टेशंस हैं उनका नाम क्या है? रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया आर मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. ओके, सो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किए हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में. वाई दे हैव एस्टैब्लिश्ड द रिसर्च कॉन्टिनेंट? बिकॉज जो अंटार्कटिका है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा रीजन है और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. सो द मेनी कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड देयर रिसर्च स्टेशन सो दैट दे कैन डू द रिसर्च ऑन दिस कॉन्टिनेंट. लाइक देम इंडिया ऑल्सो हैव established their research station and these are known as Matri and Dakshin Gangotri.
Okay, so these are the 7 continents of our world. Asia is the largest continent, Australia is the smallest continent, Africa is the second largest continent, North America is the third largest continent, the you can say the coldest, or you can say also the polar region जिसे हम कह सकते हैं, साउदर्न पोलर रीजन इज दी अंटार्कटिका. ये हमारा सबसे ज्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है. ओके, so I hope that you have understood about the continents in this video. Now we'll move further about rest of the domains of the earth. Now our second major domain of the earth is hydrosphere. जो हमारा second major domain है अर्थ का वो hydrosphere है, which means that the earth is covered with water. जो हमारा water portion है, the water surface is known as hydrosphere. The earth is called the blue planet. Why the earth is known as the blue planet? Because it is covered with 71% of water. अर्थ को हम लोग blue planet क्यों कहते हैं? Because अर्थ का जो larger portion है, जब most of the portion of earth is covered with water and the percent earth covered with water is 71%. 71% जो हमारा अर्थ है, 71% part is covered with water. ठीक, हमारे अर्थ का 71% वाटर है एंड ओनली 29% इज लैंड. हमारा जो लैंड है वो कितना है? 29% है एंड रेस्ट ऑफ द सरफेस इज वाटर. दैट्स व्हाई द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. सो द पोर्शन विच इज कवर्ड विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल द फॉर्म्स. वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? या तो फिर वो बॉइलिंग पॉइंट में होगा, मीन्स गर्म पानी, या तो फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा जो हमारे पानी नॉर्मल पाए जाते हैं, एंड या तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है जो हमारा आइस में होता है. तो हाइड्रोस्फीयर में जो भी वाटर का सरफेस आता है या जो वाटर आता है वो अपने सारे फॉर्म्स में आता है. मीन्स वाटर के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. जैसे कि जो वाटर हमारे ग्लेशियर रिवर्स में पाए जाते हैं या ओशंस में पाए जाते हैं, या जो हमारे वाटर अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, या जो हमारी आइस है ग्लेशियर्स में पाई जाती है, सो दे ऑल आर कंसीडर्ड इन दी हाइड्रोस्फीयर. ये सारे के सारे वाटर बॉडीज किसमें कंसीडर किए जाते हैं? हाइड्रोस्फीयर में. एंड मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन दी ओशन. जो हमारे अर्थ का 97% वाटर है. ठीक, मीन्स वाटर कितना है हमारे अर्थ में? 71%. वाटर इज 71%. अब इस 71% का 97% वाटर जो है, ठीक, 71% वाटर है हमारा. अब 71% का 97% जो, ये 71% हमारा कितना हुआ? 100%. और इसका 97% जो वाटर है वो हमारे ओशन में पाया जाता है. और ओशन का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है. चाहे ओशन का पानी हो चाहे सी का पानी हो, ये क्या होता है? खारा पानी होता है, मीन्स सैल्टी होता है, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमंस. और ये हमारे किसी भी काम में नहीं आता है. किसी भी काम में आता है क्या सी वाटर? नो. तो इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी वी आर फेसिंग लैक ऑफ वाटर. हमारे अर्थ पे पानी की क्या है? कमी है. ठीक, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स आर अंडर द ग्राउंड. अब क्या है कि 97% वाटर तो हमारा सी, मीन्स जो हमारा सीज और ओशन का पानी होता है वो हमारा 97% हो गया. और जो 3% पानी बचता है वो हमारा किस फॉर्म में है? या तो ग्लेशियर में आइस के फॉर्म में है. आइस मीन्स बर्फ की तरह जम गया है पानी झीलों में और ग्लेशियर्स में. और या तो फिर अंडरग्राउंड है. अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर है. ओके, अ वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के लिए क्या है? बहुत ही स्मॉल परसेंट, बहुत ही कम परसेंट पानी, फ्रेश वाटर ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है. दैट्स व्हाई हैविंग अर्थ एज द ब्लू प्लैनेट वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. इसीलिए अर्थ ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी, अर्थ के ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी, इतना पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की कमी रहती है. ठीक है, और वो क्यों रहती है? बिकॉज 71% अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड out of 71%, 97% water is salty water, or the waters found in ocean or glaciers. So these waters are not used as for human, as they are
सैल्टी, ठीक। अब सैल्टी वाटर तो हमारे किसी भी यूज में आ नहीं सकता है, तो जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओशन, बिकॉज अभी हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, अभी हम लोगों ने नॉर्मल पानी के बारे में पढ़ा कि कितना परसेंट पानी कहाँ पे अवेलेबल है और किस तरीके से, ठीक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओशंस। ओशंस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट। ओशंस, तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़े थे इसके पहले, एंड हाइड्रोस्फीयर में जो हमारे ओशंस हैं, दीज आर दी मेजर पार्ट, ठीक। ओशंस आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो ओशंस है हमारे वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ओके। सो द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशंस का पानी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, एंड व्हाट आर द थ्री मेन रीजंस व्हाई दीज आर यूज्ड टू मूव? ड्यू टू टाइड्स, जो हमारी टाइड्स होती हैं, वेव्स मींस लहरें जो हमारी होती हैं, एंड द ओशन करेंट्स, जो ओशन में करेंट्स आता है, जलजला आता है, इन सब चीजों की वजह से जो ओशन का पानी है, द वाटर ऑफ द ओशन कंटिन्यूअसली यूज्ड टू मूव, ठीक। पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है? मूव करता रहता है, ठीक। मीन्स ठहरा हुआ पानी कभी भी नहीं रहता है ओशंस का या अदर वाटर बॉडीज का। व्हाई? बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड एंड ड्यू टू वेव्स एंड टाइड्स एंड द ओशन करंट, द मूवमेंट कंटिन्यूज, ओके। सो द मेजर 5 oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean, okay. So these are the 5 main oceans of our world. So the first one is Pacific Ocean. We are going to study about the Pacific Ocean. What are Pacific Ocean? Pacific Ocean is the largest ocean of the world. जो हमारा Pacific Ocean है, ये हमारा अर्थ का सबसे बड़ा ओशन है, and it covers 1/3 of the वाटर बॉडीज। और जो हमारे ओशन का 1/3 पार्ट है, मीन्स ये पांचों ओशन के जो पार्ट हैं उनमें से 1/3 पार्ट इज कवर्ड विथ 1/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय पैसिफिक ओशन, ठीक है। अर्थ का 1/3 पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशन से कवर्ड है। दिस इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ, ओके। मरीना ट्रेंच, यू हैव स्टडीड अबाउट दी मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है हमारा, ये हमारा कहाँ लाई करता है? पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है, एंड इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मरीना ट्रेंच है हमारा, ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, एंड इट लाइज इन द पैसिफिक ओशन, एंड पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट इन सर्कुलर शेप। जो पैसिफिक ओशन का शेप है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। Why I have not made circle over here? Because यहाँ पे बोला गया almost, means पूरी तरीके से सर्कल है, बट थोड़ा बहुत कहीं पे जो सर्कल है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, so that's why I have made it like this. So the Pacific Ocean is almost circular in shape. जो Pacific Ocean है वो almost किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। नॉर्थ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर सराउंडेड, ठीक। मींस जो हमारा ये ओशन है इसके चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक। एंड दिस ओशन इज इन बिटवीन ऑल द 4 कॉन्टिनेंट्स, ओके। सो द अटलांटिक ओशन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अटलांटिक ओशन। What are Atlantic Oceans? Atlantic Oceans क्या है? Atlantic Ocean are the second largest ocean, ठीक। First one is the Pacific Ocean, जो कि हमारा first largest ocean था। Second one is the Atlantic Ocean. This is the second largest ocean in the world, and it is S shape. जो हमारा ये Atlantic Ocean है ये किस शेप में है? S शेप में है, ठीक है। It is in S shape and it is सराउंडेड बाई, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हो जाएगा, पैसिफिक ओशन हमारा क्या था? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में था। अटलांटिक ओशन हमारा एस शेप में है, ठीक है। अटलांटिक ओशन इज आर इन
S shape. It is flanked by North South America on the western side. और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है इसके इधर इस तरफ क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है. एंड द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन जो हमारा है उसकी कोस्टलाइन भी यहीं से स्टार्ट होती है. ओके, सो it is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. Means जो इसका ईस्टर्न साइड है वहां पे क्या क्या है, यूरोप एंड अफ्रीका, और इसके वेस्टर्न साइड में क्या क्या है, हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, तो द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड. जो हमारी कोस्ट लाइन है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हाईली इंटेंडेड है, बहुत ही ज्यादा हाईली डिफाइंड है. ओके, the irregular and intended coastline provide the ideal location of the natural harbors and the ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. ठीक, ये जो हमारी इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स जो हमारी बीच का एरिया, जो हमारा किनारा है, ये बहुत ही ज्यादा बिजी है. एंड व्हाई इट इज सो मच बिजी, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह हैं, जो पोर्ट बनाया जाता है जहाँ पे सी और में जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं, शिप्स वगैरह होते हैं, उनके खड़े होने की जगह होती है, यहाँ ये बहुत ही ज्यादा बिजी ओशन है. क्योंकि जो भी बाहर से हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, जो भी हमारी चीजें बाहर जाती हैं शिप के थ्रू या आती हैं, वो मोस्टली इस ओशन से होके आती हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज द बिजिएस्ट ओशन अगर हम कॉमर्स की लैंग्वेज में देखें तो. ठीक है, the Indian Ocean. Now we will study about the Indian Ocean. It is in the shape of a triangle. जो हमारा Indian Ocean है ये किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है. एंड इट इज द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नेम में पड़ा है. बाकी आप देख लीजिए किसी का भी नाम कंट्री के नाम पे नहीं पड़ा है. ठीक है, बट इट इज द ओनली ओशन जिसका नाम किससे पड़ा है, एक कंट्री के नाम पे पड़ा है. एज इंडिया इज आवर कंट्री. ठीक है, तो इंडियन ओशन एक कंट्री के नाम पे पड़ा है इसका नाम. एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इसके तीनों तरफ है, इट इज बाउंडेड बाय द एशिया, अफ्रीका, जो हमारे क्या कहते हैं कि इन द नॉर्थ में क्या है, इट इज बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ में इसके एशिया है. इन द वेस्ट देयर इज अफ्रीका एंड इन द ईस्ट देयर इज ऑस्ट्रेलिया. मीन्स ये जो है ये तीनों तरफ से किसी ना किसी कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है. वो तीन कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साउदर्न ओशियन. साउदर्न ओशियन encircles the continent of अंटार्कटिका. जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको क्या करता है, encircles मीन्स उसके encircle पे मीन्स उसको एक सर्कुलर पाथ में encircle करता है. मीन्स घूमते हुए उससे घूम के गया हुआ है. and extends northward to 60 degrees south latitude. Means क्या है, जो हमारा साउथर्न ओशियन है ये किसके तरफ गया हुआ है, साउथर्न ओशियन सर्कल द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से 60 डिग्री का क्या बनाता है, जैसे ये हमारा ये 60 डिग्री का एंगल है. ठीक है, ये 60 डिग्री का हमारा एंगल है. तो हमारा जो ये साउदर्न ओशियन है ये एनसर्कल करता है. मीन्स हम एनसर्कल कैसे करता है, मीन्स ये जो ओशन है ये हमारे अंटार्कटिका को 60 डिग्री के एंगल पे आधा एनसर्कल मीन्स आधा सर्कल बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है, बनाते हुए निकल जाता है. ठीक है, एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू दी, और किसकी तरफ निकलता है, मीन्स सेमी सर्कल यहाँ से बनाते हुए नॉर्थवर्ड मीन्स नॉर्थ की तरफ, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ की तरफ ये ओशन निकल जाता है. ओके, एंड सो द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन दी आर्कटिक सर्कल. जो आर्कटिक ओशन है ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है. एंड इट इज सराउंडेड बाय दी नॉर्थ पोल. एंड ये किसको सराउंड करता है, मीन्स नॉर्थ पोल के चारों तरफ है. जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसके इधर का जो पोर्शन होगा दिस विल बी आर्कटिक ओशन. ठीक है, इट सराउंड दी नॉर्थ पोल, ये हमारे नॉर्थ पोल को घेरता है. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, और आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन. ठीक है, आर्कटिक ओशन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है दैट which oceans are connected to each other, then you will say that Pacific Ocean and Arctic Ocean. ये दोनों ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके, एंड
इट इज कनेक्टेड विद द बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, वाटर के एक नैरो स्ट्रेच से, मीन्स शैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट, एंड इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट शैलो वाटर और बैरियर वाटर से एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ओके, इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया के जो दोनों को कनेक्ट करके जो लैंड सरफेस बना है उसे यूरेशिया कहा गया है। तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है, नॉर्दर्न कोस्ट से बाउंड करता है, मीन्स उधर से गुजरता है, ठीक, कनेक्ट करता है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द ओशन। पैसिफिक ओशन किस शेप में होता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में होता है, और ये कहाँ लाई करता है हमारा, इज द largest ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. It is circular in shape, and Asia, Australia, North and South America are surrounded it. ठीक, ये चारों कॉन्टिनेंट इस ओशन को सराउंड किए हैं, मीन्स घेरे हुए हैं। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज इन एस शेप। और जो अटलांटिक ओशन है ये एस शेप में है, और इसे कौन कौन से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो घेरे हुए हैं, एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक, ये चारों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये चारों अटलांटिक ओशन को हमारे सराउंड किए हुए, मीन्स घेरे हुए हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, एंड इट इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री नेम इंडिया। ठीक है, और जो इंडियन ओशन है ये हमारा, इट इज बाउंडेड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। जो इंडियन ओशन है ये 3 कॉन्टिनेंट से बाउंडेड है। बाउंडेड है मीन घेरा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि सराउंडेड है, ठीक, जुड़ा हुआ है। तो किससे किससे, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउदर्न ओशन जो हमारा है, साउदर्न ओशिया हमारा लाइज एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थवर्ड। ठीक, मीन्स ये हमारे अंटार्कटिका से होते हुए 60 डिग्री नॉर्थवर्ड की तरफ, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ की तरफ निकल जाता है। दिस इज अ साउदर्न ओशन। एंड आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है वहां पे लाई करता है, एंड इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। और ये किसे सराउंड करता है, ये ओशन नॉर्थ पोल को। एंड पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन जो है ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। और कैसे कनेक्टेड हैं, इट इज कनेक्टेड with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water. Shallow water means, narrow means पतले से, shallow water means हल्की सी धारा के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, बेरिंग स्ट्रेट। So it is bounded by northern coast ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और जो हमारा आर्कटिक ओशन है ये किससे बाउंडेड है, कौन से कॉन्टिनेंट से, नॉर्दर्न कोस्ट से और यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया के जो लैंड मास है उससे। ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर अबाउट द थर्ड डोमेन ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर, दैट इज लेयर ऑफ गैस। जो हमारी अर्थ है वो एक गैस की लेयर से घिरी हुई है, सराउंडेड मीन्स घिरी हुई है चारों तरफ से, लेयर ऑफ गैस, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और उस जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, द गैसियस लेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, सो द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लेनेट। ठीक, जो हमारी गैसियस एयर की थिन लेयर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लेनेट। It provides us with the air we breathe. और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो एयर प्रोवाइड करती है that we breathe, that is very necessary for the life of the human. Okay, and it also protects us from the harmful rays that radiate from the sun. So the atmosphere extends up to the height of 16,000 kilometers. जो हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट है, it is approximately 1600 किलोमीटर। ठीक, जो एक्सटेंस है मीन्स कितनी दूरी में फैली हुई है, 1600 किलोमीटर्स में। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर।
द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक, अबव 1600 किलोमीटर है। एंड द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो हमारे एटमॉस्फेयर हैं वो अपने कंपोनेंट्स, टेम्परेचर, हाइट और भी कई चीजों के अकॉर्डिंगली इनकी 5 लेयर्स डिफाइन की गई हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की द लोअर लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे नीची लेयर है एटमॉस्फेयर की, हमें अरे वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है। द लेयर अपॉन दैट मीन्स अब के ऊपर जो है अप टू द ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज मेसोस्फेयर एंड द अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, ठीक है। We'll further study about these layers in deeply, but right now you have to just know the different types of layers in the atmosphere. These are the 4 main layers of the atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, exosphere, and there is also one layer that is thermosphere, ठीक। एक्सोस्फीयर के पहले यहाँ पे एक और लेयर है जिसका नाम क्या है, थर्मोस्फीयर, एंड अबव दिस देयर इज द लेयर नोन एज एक्सोस्फीयर, ठीक। ये हमारी 5 मेन लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। द लोअर लेयर इज ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर आती है फिर स्ट्रेटोस्फीयर, अपर देन दैट देयर इज मेसोस्फीयर, देन द थर्मोस्फीयर एंड द अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक। सो दीज आर दी मेन 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट किससे कवर्ड है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन है बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज मच बिगर देन दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा पार्ट नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज 78%, द अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 78%, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 21%। जो हमारे ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ 21%। और जो हमारी 1% है ये हमारी other gases हैं like carbon dioxide, helium, xenon, argon and these type of gases, okay। So the oxygen is the life of the atmosphere। oxygen क्या है, oxygen से ही people हम लोग breathe करते हैं, सांस लेते हैं। oxygen is very necessary for all of us, ठीक। तो oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organisms। जो हमारे ऑक्सीजन है ये तो लाइफ ऑफ ब्रीदिंग है, मीन्स हमें ब्रीथ करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन किस काम में आती है, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ क्या करती है, जो हमारे अर्थ से हीट जनरेट होती है, हीट रेडिएट होती है, उसे भी एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है एंड कीप्स द प्लैनेट वार्म, ठीक। जो हम रेडिएट करती है कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्रोड्यूस करती है जिससे कि हमारा जो प्लैनेट है वो क्या रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है। इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ plants. The density of atmosphere varies at the different heights, means जो varies means change होना। जो हमारे डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी मीन्स घनत्व है एयर की, वो अकॉर्डिंग टू द हाइट क्या होती रहती है, चेंज हो जाती है। एज यू हैव सीन और यू मस्ट बी नोइंग दैट जब भी कोई माउंटेन पे जाता है, ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एयर की डेंसिटी सी लेवल पे क्या होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक। हम अगर ग्राउंड पे है तो हमको जो एयर की डेंसिटी है वो एकदम हाई लेवल पे होगी, मैक्सिमम लेवल पे होगी, तो हम इजिली ब्रीथ कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। जो एयर की डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू मस्ट ऑल बी नोइंग कि जब माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो माउंटेन से क्लाइंब करने के लिए जाते हैं, व्हाट दे यूज टू कैरी विद देम,
वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। व्हाई दे यूज टू डू दैट, बिकॉज जो हमारी टॉप लेवल है, मीन्स जो हमारा अपर लेवल है, हाई लेवल है, वहां पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, इसलिए उन्हें अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी ग्रो अप, और जैसे जैसे एयर की डेंसिटी में वेरीज करती है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी वेरी करता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठंडा होता जाता है, मीन्स टेम्परेचर घटता जाता है एज वी गो इन दी हायर प्लेसेस, ठीक। So the temperature and air are both converted to connected to each other. As the air की density increase होगी, temperature भी increase होगा, air की density decrease होगी, उसी के साथ temperature भी हमारा decrease होता जाएगा। This varies from place to place, और जो air की density है और temperature है, ये दोनों place to place means जगह के हिसाब से घटते या बढ़ते रहते हैं, ठीक, चेंज होते रहते हैं। Some areas experiences high pressure and some areas experience low pressure. कुछ एरिया में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बट इन सम प्लेसेस देयर आर लो प्रेशर, ठीक है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो हमारी एयर है वो कैसे मूव करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में मूव करती है। मूविंग द एयर इज नोन एज विंड, मीन्स मूविंग एयर, जो हवा मूव करती रहती है, ठीक, मीन्स मूविंग, हवा तो धीरे धीरे चलती ही रहती है, तो जो मूव करती हुई एयर होती है इज नोन एज wind. So whenever anyone will ask you that what is wind, you have to just tell them that the moving air is known as wind. Okay, so now I have told you that what is atmosphere. The thin layer of gas surrounds the earth is known as atmosphere. The main 5 layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Exosphere is the outermost layer, that's why I am telling you about to the डाउनवर्ड साइड, ठीक। मैं नीचे से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, उसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज द exosphere. Okay, after that we have studied about the gases and percentage of gases. Nitrogen is 78%, oxygen is 21%, and the other 1% is carbon dioxide, helium, argon and many other gases. Oxygen is very important gas as it is the breath of life, ठीक, मीन्स क्योंकि जिंदगी हमारी जो सांसें हैं वो किससे चल रही है, ऑक्सीजन से चल रही है। वी कैन ब्रीथ थ्रू ऑक्सीजन, बट इन द सेम केस जो नाइट्रोजन है इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट कार्बन डाई हेल्प फॉर, कार्बन डाई जो हमारी है वो अर्थ में एक हीट रेडिएट करती है, हीट एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो क्या रहता है, वार्म रहता है, and it also helps in the growth of the plant. And what we have studied that the density of air varies from different distances, ठीक। अगर हम सी लेवल पे हैं तो डेंसिटी मैक्सिमम लेवल पे होगी, अगर हम हाई लेवल पे हैं तो क्या होगा, जो हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। So this is about the atmosphere. Now we will come towards the last domain of the earth, that is biosphere. Which now the last domain is the domain of life, that is known as biosphere. Biosphere हमारा life of domain है, domain of life है, because it consists of all the 3 domains: atmosphere, lithosphere and hydrosphere. The biosphere is the narrow zone of contact between air, water and land. जो biosphere है ये हमारे तीनों कंपोनेंट्स जो है, हमारे एलिमेंट्स हैं लाइफ के, इन तीनों का एक कनेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट, और ये एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है जिसपे ये तीनों चीज अवेलेबल हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स that vary in size from microbes to and bacteria to huge animals. और हमारे जो planet है इसमें different types की species हैं, from microbes and organisms to mammals, ठीक है। And all the living organisms including humans also are required to be in the
इन दिस जोन एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मीन्स चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, आर लिंक्ड टू ईच अदर, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बायोस्फीयर और से के साथ साथ एक दूसरे से भी linked हैं। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। और जो हमारा बायोस्फीयर है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। हमारे कुछ चीजें हैं वो हमारे प्लांट किंगडम में आती हैं एंड द अदर थिंग्स कम इन द एनिमल किंगडम। ठीक, तो जो हमारा ये जो बायोस्फीयर है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, so the three domains of the earth interact with each other and affect each other। जो हमारा थ्री डोमेन्स कौन कौन सी हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर पे कुछ इफेक्ट आएगा तो उसका इफेक्ट लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। अगर हाइड्रोस्फीयर में कोई इफेक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। और सेम थिंग अगर लिथोस्फीयर में कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो दैट विल बी सीन इन दी एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इन शॉर्टली वी कैन से दैट दीज थ्री आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कटिंग ऑफ ट्रीज देखें, अगर हम सॉइल लिथोस्फीयर जो है हमारा लैंड हमारा है, इसमें क्या हो, ट्रीज को हम कट करें, ठीक है, या हम ग्राउंड की सफाई करवाएं एग्रीकल्चर के लिए, तो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन दी सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और जो क्या कहते हैं कि स्लोप से क्या होगा, हमारा रिमूवल ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल बहुत जल्दी जल्दी क्या होंगे, रिमूव होंगे। क्यों, जब बारिश होगी तो जो वाटर होगा क्या होगा, अगर पेड़ वगैरह रहेंगे तो पानी उनसे टकरा के आएगा तो उसका फोर्स कम होगा, बट अगर डायरेक्टली वो लैंड पे पड़ेंगे तो पानी मिट्टी को क्या करेंगे, सॉइल को अपने साथ वो ड्रॉन करके ले जाएंगे, मीन्स बहा के ले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। जो नेचुरल क्लैमिटीज हमारी होती है उसकी वजह से भी अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक की वजह से। फॉर एग्जांपल जो हमारा अंडमान निकोबार है उसमें जो अर्थक्वेक आया था तो उसका कुछ पार्ट क्या हो गया था, ओशन में सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज मीन्स डूब गया था। सम पार्ट ऑफ द अंडमान निकोबार हैज बीन ड्रोन्ड इन दी ओशन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से ये चीजें हुई थी। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल्स के डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज मीन्स फेंकते हैं हम रिवर्स में, लेक्स में, या जो फ्रेश वाटर है जहाँ से हमें मिलता है वहां पे, उससे क्या होता है, जो हमारा पानी है वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं रह जाता है, बिकॉज इफ विल पॉल्यूट दी वाटर वी कैन नॉट यूज इट इन फ्यूचर, सो इट इज ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ के अदर फॉर्म्स भी डैमेज होते हैं। एमिशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उनका एमिशन मीन्स बहाए जाते हैं रिवर्स में। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली वो कहाँ पे सेटअप की जाती हैं, एट द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे पे सेटअप की जाती हैं, सो दैट दे कैन इजिली एमिट ऑल द वेस्ट मटेरियल्स इन द रिवर। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, आर रिवर इज कंटिन्यूसली पॉल्यूटेड। हमारी रिवर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, उसमें से गंदे पानी आ रहा है और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें से धुआं निकलता है, तो ये किसको पॉल्यूट कर रहा है, इट इज पॉल्यूटिंग आवर एयर, मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स, व्हाट दीज ऑल थिंग्स डू, इन सब चीजों की वजह से अगर किसी भी एक चीज, कोई भी एक चीज डिसबैलेंस हो रही है, हमारे तीनों डोमेन्स में से कोई अगर एक भी डोमेन डिसबैलेंस हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे अदर दो डोमेन्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, एयर में पाई जाती है। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर है विच इज फाउंड इन दी एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या एमिट करती है, हीट एमिट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड वील फेस दी हीट ऑल ओवर दी प्लेनेट। बहुत ज्यादा गर्मी होगी हमारे प्लेनेट में और इसको क्या कहा जाता है, दी एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग विच हैज बीन फेसिंग
बाय अस थ्रू आउट द ईयर, जिसको हम अभी इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग. वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ का, बट अगर किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा होगी कोई भी चीज, देन इट विल बी हार्मफुल. तो सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगी या जरूरत से ज्यादा हमारे एटमोस्फेयर में होगी, तो इट विल अफेक्ट दी टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी, एंड विच इज नॉट गुड फॉर आर एटमोस्फियर. ठीक है. सो देयर इज दस a need to limit the use of resources. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका जो यूज है वो लिमिट में होना चाहिए. ठीक है. किसी का भी यूज बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी एक्सेस यूज करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं पे दूसरा असर पड़ेगा. इट विल बी हार्मफुल. तो जो हमारे रिसोर्सेज है उनका यूज लिमिट में हो, जिसकी वजह से जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो क्या रहे, बना रहे. एंड द डोमेन्स ऑफ नेचुरल बैलेंस जो है, नेचुरल बैलेंस है हमारे तीनों डोमेन्स का, वो बराबर रहे, बैलेंस में रहे, बराबर रहे, बना रहे आराम से. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का. व्हाई? बिकॉज दीज ऑल थ्री आर लिंक्ड विथ ईच अदर. और अगर इनमें से किसी एक में भी डिसबैलेंस होगा, so all the three will be affected. All the three will be affected. Okay. So that is the main thing which is included in the biosphere, that it is the domain of the life. और इसको क्यों हमें बैलेंस करना चाहिए, and why we need to take care of it, because this is the only planet which has all the three elements, land, water and air, and so we have to protect this and balance it in a manner that it can be used in future also. Okay, so I hope that you have understood this chapter about the major domains of the earth. In this chapter we have studied about the four major domains of the earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere is the solid surface of the land. Atmosphere is the gaseous layer which has been surrounded by the earth. हाइड्रोस्फीयर इज दी वाटर सरफेस. हाइड्रोस्फीयर क्या है, हमारा वाटर सरफेस है. और हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर बॉडीज हैं, वो कोई भी वाटर बॉडीज आ सकती हैं, इधर दी ओशंस, द ग्लेशियर्स एंड ऑल्सो दी अंडरग्राउंड वाटर कम्स अंडर दी हाइड्रोस्फीयर. एंड बायोस्फीयर इज दी all the three combination of all the three domains. Lithosphere, atmosphere and hydrosphere are these all three are found in the biosphere, and it is very necessary to balance all these, because it will linked to each other and it will affect us if any one of them will be affected. अगर इन तीनों में से कोई भी एक इफेक्ट होता है तो it will affect other two domains also. That's why it needs to be balanced. The third thing we have studied is about the continents. There are 7 main continents. We have studied about them, and the ocean, the 5 main oceans. We have studied all of these about. So now I am stopping this chapter over here only. I hope that you have understood this chapter. So thank you all of you. We'll meet in our next class.